Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, I will be completing the topics disinvestment, deficit, budget, and other scheme types. So, first of all, we'll begin with capital receipts. We have already done revenue receipts and revenue expenditures. Now, we'll be doing capital receipts. Receipts are primarily of two types. We have debt receipts and non-debt receipts. ठीक है, डेट रिसीट्स क्या होगा? बोरोड मनी. ठीक है, whereas नॉन डेट receipts will be non borrowed money, है ना. तो internal borrowing से जो this again can be classified into two types. We have internal borrowing से whatever money we have got, and then external borrowing as well. Internal borrowing कैसे कैसे कर सकते हैं? So the government can borrow from RBI, it can borrow from the market, it can borrow from other small saving schemes, है ना, and also borrow from provident funds. ठीक है, and external borrowing कहाँ से कर सकते हैं? They can take loans from foreign countries and other institutions like IMF, World Bank, etc. ठीक है. Now this was capital debt receipts. Now we'll be looking at capital non-debt receipts. These further are classified into देखो, क्लासिफिकेशन नहीं है वैसे, इसका टाइप्स है ये. लोन, अगर किसी भी लोन का हमने प्रिंसिपल रिकवर करा है, देन दैट विल काउंट एज कैपिटल नॉन डेट रिसीट. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो डेट इन्वॉल्व, बोरिंग नहीं हुआ था. हाउएवर द अमाउंट ऑफ एसेट हैज़ रिड्यूस्ड बिकॉज लोन वापस मिल गया हमें, मतलब हमारा एसेट ख़त्म हो गया. लोन वॉज इनिशियली एन एसेट, बट वंस इट हैज़ बीन रिटर्न इट बिकम्स it is no longer an asset. ठीक है, so that is why, since the asset is being affected, that is why this is known as a capital non-debt receipt. तो इसमें वही है, मनी repaid to the union government by state governments, foreign countries और public sector companies. ठीक है. नाउ वील बी लुकिंग एट डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट में क्या रहेगा? सेलिंग यूनियन गवर्नमेंट्स शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. ठीक है, दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. ये वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस. अगर डिसइन्वेस्टमेंट इज डन बियॉन्ड 50% देन इट बिकम्स प्राइवेटाइजेशन. ठीक है. Now debt receipts form a larger portion of the capital receipts because we take a lot of loans, मतलब our Indian government. ठीक है, and non debt receipts contribute a smaller share, so you should be knowing this as well. नेक्स्ट है कैपिटल रिसीट्स में डिसइन्वेस्टमेंट. देख लेते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस, बट स्टिल वी आर गोइंग टू रीड थोड़ा सा इसमें. वही डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? वही रिड्यूसिंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड स्टेक्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. ठीक है, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी चेकिंग कि गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. We have central public sector enterprises, then we have public sector units and public sector banks as well. ठीक है, तो these are the different types of public sector entities. Public sector banks क्या पता ही है हमें, है ना? Banks where government is holding a majority stake, that is more than 51%. ठीक है. Then central public sector enterprises are those which are registered under the Companies Act. Government owns more than 51%. ठीक है. However, this will be excluding public sector banks because उसके लिए PSB में काउंट हो गए है ना. इंश्योरेंस कंपनीज एंड NBFC, these will be excluded. कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है that will be excluded from the definition of central public sector enterprises. ठीक है. Then we have public sector undertakings. These are all the government owned companies under union government, state government and local bodies. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? इट शुड बी रजिस्टर्ड इन द कंपनीज एक्ट, तभी एंटरप्राइज बोलेंगे, है ना. एंटरप्राइज और कंपनी सिनोनिम्स हुआ. ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं. सो ये नहीं रहेगा. ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को देखेंगे. In PSUs, it will be consisting of all the government-owned companies under union government, state government, or local bodies. Now we'll be looking at Ratna companies. So Maharatna, Mini Ratna, ये सब जो होते हैं ना, we are looking at those. So रत्ना स्टेटस कब मिलता है? महारत्ना, मिनी रत्ना स्टेटस
It is primarily given by the Department of Public Enterprises, which is in the finance ministry. ठीक है, finance ministry, that is the one who classifies different companies. So it applies only to government companies, not to private sector firms. ठीक है, and then पर्पस क्या है, इट विल बी प्रोवाइडिंग ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर माइनर डिसीजंस. सो बेसिकली मोर इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी इज प्रोवाइडेड टू better companies. So Maharatna company है तो they'll be having better autonomy. ठीक है, so categories देख लेते हैं रत्ना status के. We have mini रत्ना, नवरत्ना and महारत्ना. So mini रत्ना company का criteria क्या है, it should be profitable for the last 3 years, or there are some examples given as well. So we do not need to look at the examples. बस आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि 3 साल के लिए अगर प्रॉफिटेबल है देन इट विल बी अ मिनी रत्ना कंपनी. नवरत्ना कंपनी क्या होगा, it will be either a mini ratna fulfilling additional conditions or a non mini ratna meeting other financial criteria. So the criteria is not very important. ठीक है, इस केस में you just need to know that it can be, there is a certain criteria which needs to be followed. महारत्ना कंपनी में क्या होगा, इट विल बी अ नवरत्ना कंपनी और उसका एक एडिशनल क्राइटेरिया होना चाहिए कि दे शुड हैव मिनिमम ₹5,000 का प्रॉफिट पर ईयर फॉर द लास्ट 3 years. ठीक है, एंड इट इज़ लिस्टेड ऑन, इट शुड बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड शुड ऑल्सो हैव ग्लोबल प्रेजेंस. ठीक है, सो एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर BHEL, BPCL, कोल इंडिया, गेल, ONGC, ये सब चीज़ें. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वील ट्राई टू रिमेंबर द क्राइटेरिया. मिनी रत्ना में M है और इवन महारत्ना में M है, सो बोथ ऑफ देम विल हैव 3 समवेयर. ठीक है, क्योंकि M को ऐसे टर्न कर लेंगे तो 3 बन जाता है ना, तो वैसे करके लर्न कर लो कि मिनी रत्ना में देयर इज द क्राइटेरिया ऑफ 3 years प्रॉफिटेबिलिटी, whereas महारत्ना में देयर इज अ क्राइटेरिया दैट लास्ट 3 years प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए, बट दैट टू ऑफ ₹5,000 crore. ठीक है, एंड रिमेंबर द quantum of money, that is 5,000 crore rupees. ठीक है, नाउ वी आर लुकिंग एट गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स डिसइन्वेस्टमेंट बिफोर 2021. सो वही डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में डिफरेंस आपको पता होगा. डिसइन्वेस्टमेंट में द गवर्नमेंट विल रिटेन नियरली 51% or more, whereas in case of privatization, which is also known as strategic disinvestment, the government will sell out more than 50% of the shares. ठीक है, and the management control will also be transferred. ठीक है, and this entire thing has been defined by DPAM. DPAM stands for Department of Investment and Public Asset Management under Finance Ministry. ठीक है, तो ये आप याद रखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है. And who is the one who comes up with this? It is Department of Investment and Public Asset Management. ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन मोदी गवर्नमेंट. सो क्या हुआ है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, as we already said कि as we already studied, a substantial portion of the um, stake is given up by the government, है ना, तो उसी को स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं. समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवेस्टमेंट. सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, डाइवेस्टमेंट में 50% से ज़्यादा स्टेक चले जाएगा. ठीक है, सो जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, डाइवेस्टमेंट भी बोलते हैं उसको. ठीक है, बाकी ये जो स्पेसिफिक कंपनीज कौन से हुए थे डिसइन्वेस्टमेंट जिनमें, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी ऑफ 2021. सो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में आपको पता होगा. इट इज़ बेसिकली एन एसेट मोनेटाइजेशन इनिशिएटिव. वी हैव रेड अबाउट दिस इन अ प्रीवियस वीडियो एज वेल. इसमें क्या रहेगा, the central public sector enterprises हैं उनके पास they have a lot of assets. So for example they'll have a lot of land which will be unused. ठीक है, now this land will be sold off or rented or given away on lease. ठीक है, and that is known as
that is the main initiative under national monetization pipeline. ठीक है, and this is one target कि 6 लाख करोड़ they had to raise, but you do not have to remember this as such, है ना. और बस इतना ही है इसमें. नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट स्टेट केपेक्स लोन्स. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं. कैपिटल रिसीट्स देख लिया हमने, है ना. कैपिटल रिसीट्स वी आर डन विद दोस. नाउ वी विल बी लुकिंग एट कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो रहेगा, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर विच चेंजेस द असेट्स, है ना, मतलब विच हैज़ एन इफेक्ट ऑन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कैसा एक्सपेंडिचर होगा, इफ़ यू बाय इफ सम if the government buys something, buys an asset, if for example if the government buys a large piece of land, तो उनका asset बढ़ गया है ना. Now that will be known as capital expenditure. ठीक है, similar now in this we will be looking at state capex loans. So उसमें भी एक सब टॉपिक है, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम. ठीक है, दिस वाज लॉन्च्ड इन 2020. ये एक इंटरेस्ट फ्री 50 ईयर लोन देता है टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन हेल्थ, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, पावर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन. ठीक है, जो भी सोशल सर्विसेज वगैरह है ना हमारे, दोज विल बी एड्रेस्ड एंड दिस इज एन इंटरेस्ट फ्री 50 ईयर लोन. ठीक है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस. सिमिलर केपेक्स लोन्स वर गिवन अर्लियर, मतलब बाद में एक बजट 2023 में भी दिया था. दैट वाज प्राइमरली फॉर स्क्रैपिंग ओल्ड गवर्नमेंट व्हीकल्स. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू नो कि क्या होता है केपेक्स लोन्स. ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट देख लेते हैं. अगेन बजट 2024 में अगेन केपेक्स लोन्स वर एक्सटेंडेड टू द स्टेट्स ऑफ अराउंड 1.5 लाख करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन्स वर गिवन. ठीक है, तो आगे देखते हैं. सो वी आर लुकिंग एट द टाइप्स ऑफ बजट. सो देर आर प्राइमरली 3 टाइप्स ऑफ बजट. देयर इज सरप्लस बजट, बैलेंस्ड बजट और डेफिसिट बजट. ठीक है, सरप्लस बजट एज द नेम सजेस्ट्स कब होगा, जब सरप्लस होगा. सरप्लस मतलब द गवर्नमेंट्स इनकम विल बी मोर दैन द एक्सपेंडिचर. ठीक है, बैलेंस्ड बजट में गवर्नमेंट्स इनकम विल बी इक्वल टू द एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट बजट में गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर दैन द इनकम. इंडिया में इट इज़ जनरली अ डेफिसिट बजट ओनली. ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट का भी फॉर्मूला देख लेते हैं. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग. ठीक है, नाउ दैट बिकम्स द फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट मतलब कि कितना डेफिसिट है इकोनॉमी में, है ना. एक तो बजट डेफिसिट जो खुद ही है, प्लस जो भी बोरिंग लिया है हमने इन ऑर्डर टू come to overcome certain deficits, even that is included to come at a total picture regarding how much deficit we have. ठीक है, so it includes borrowing from internal sources as well as external sources. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट का जो एनसीईआरटी में फॉर्मूलाज दिए हैं वो यहाँ पे दिए हैं. सो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर minus revenue receipts plus minus non-debt capital receipts. ठीक है, ये है. देन फिस्कल डेफिसिट इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स. हाँ, सो ये वाला तो इजीली यू कैन कम अप विद दिस, बिकॉज देखो क्या है, एक्सपेंडिचर किस चीज़ से होगा, एक तो जो हमारे पास पैसे पड़े हैं रेवेन्यू से होगा, प्लस जो हमने बोरो करके लिया है पैसा उन सब चीज़ों से होगा, या लोन लिया है. सो दैट कम्स अंडर फिस्कल डेफिसिट. ठीक है, और रेवेन्यू क्या रहेगा, हमारे टोटल रिसीट्स. ठीक है, इफ़ वी ऐड बोथ ऑफ देम वील गेट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ दिस फॉर्मूला हैज़ बीन डिराइव्ड. ठीक है, सिमिलर थिंग हैपन्स हियर.
यहाँ पे भी जो सारे रिसीट्स हैं उनको ऐड करा है, एंड दे हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द टोटल एक्सपेंडिचर। दोनों सिमिलर फॉर्मूलाज ही हैं ये दोनों। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिस्कल। हाँ, ये हो चुका है। देन govern gross fiscal deficit versus net fiscal deficit. So we look at these two now terms. Gross fiscal deficit में क्या रहेगा? It will be net borrowing plus RBI borrowing plus foreign borrowing. ठीक है। और नेट फिस्कल डेफिसिट में रहेगा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट लेंडिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये याद रखना है हमको। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में ग्रॉस तो नेट बोरिंग पूरा ऐड करेंगे, फिर आरबीआई से जो भी बोरिंग लिया वो करेंगे, एंड फॉरेन बोरिंग है उसको भी ऐड कर देंगे। नेट फिस्कल डेफिसिट में इस सब में से नेट लेंडिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है। तो ये नेट आ जाएगा जिसमें जो खुद ने जो लेंड करा दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, वेयर एज ग्रॉस में ओवरऑल टोटल आएगा। ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दीज टू आर सेम, बस नेट में क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ने जो लेंड कर दिया है दैट विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है। और ये सब में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या बोरो कर रहा है। एक तो डोमेस्टिक बोरोइंग कितनी है वो ऐड कर दिया, आरबीआई से कितना बोरो कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो ऐड कर दिया, और फॉरेन बोरोइंग ऐड कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट में क्या है, इसका देयर इज अ फॉर्मूला। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू द फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन्स। देखो है ना, ये समझ गए आप। तो इसमें क्यों निकाला है इसको, इंटरेस्ट पेमेंट्स को क्यों हटा दिया, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन द गवर्नमेंट कंटिन्यूसली बोरोज, तब क्या होता है, इट विल इंक्रीज द डेट प्लस इट विल क्रिएट अ साइकिल ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो क्या हो रहा है, हम लोग जो नया लोन ले रहे हैं ना, वो प्राइमरीली पुराने लोन के इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। ठीक है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, दैट इज़ वाई primary deficit is calculated in order to assess that how much the government is borrowing for new programs excluding past debt interest। मतलब कि from this formula we come to know कि how much money is being used for new programs rather than just paying off old interest rates। ठीक है। तो न्यू चीज़ों के लिए कितना पैसा यूज़ हो रहा है। ठीक है। So again, this primary deficit is important from that angle, and this was introduced by Manmohan Singh ji in 1993. Now we'll be looking at gross primary deficit. इसको पहले एक बार, हाँ, हाउ विल यू रिमेंबर दैट प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट हटाते हैं, प्राइमरी में आई आता है ना, तो उससे लिंक कर लो कि आई से इंटरेस्ट। ठीक है। इन प्राइमरी इंटरेस्ट, आई से इंटरेस्ट विल बी रिड्यूस्ड। नाउ ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, इसमें क्या है, इट विल बी द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस द नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज। ठीक है। इससे पहले मैं क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस लोन्स, whereas in gross primary deficit we'll be having gross fiscal deficit minus the net interest liabilities। ठीक है। So this much you just need to remember the formula। ठीक है। तो ये ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, ये इंटरेस्ट भी हटा ही रहे हैं, बट ग्रॉस है तो इसलिए यहाँ पे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट रहेगा माइनस द नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज, मेरा यहाँ पे नॉर्मल फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या रहेगा, दिस इज सिंपल, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट से हमको डेफिसिट मिल जाता है ना। डेफिसिट मतलब कितना कमी हो रही है पैसे की। ठीक है। तो दिस अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट्स इनकम इन द रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है। तो ज़्यादातर अगर हाई रेवेन्यू डेफिसिट है ना, दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग, बिकॉज इसका मतलब क्या हुआ, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, डे टू डे एक्सपेंडिचर है, इवन दैट इज़ नॉट बीइंग फुलफिल्ड बाय द revenue which the government earns। ठीक है। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी नेगेटिव मेट्रिक, मतलब नेगेटिव इंडिकेटर है कि अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है। सो हायर रेवेन्यू डेफिसिट मतलब मोर बोरोइंग और रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर,
ठीक है, therefore fewer schools, hospitals and then slower human and economic development. ठीक है, so this is a वेरी ग्रेव सिचुएशन के रेवेन्यू डेफिसिट भी है किसी कंट्री में तो देन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या रहेगा, इट विल बी द रेवेन्यू डेफिसिट माइनस द ग्रांट्स फॉर एसेट कैपिटल या एसेट क्रिएशन. तो you might be knowing that the central government gives grants to state governments in order to help them to create capital assets, है ना, कि ऐसे 50 लाख नहीं, 50 लाख तो कम हो गया, जैसे 50 करोड़ दे दिया कि यू गेट सर्टन एसेट्स बिल्ट, है ना, किसी भी स्टेट को दे दिया. ठीक है, सो दिस मनी विल बी रिड्यूस फ्रॉम द रेवेन्यू डेफिसिट बिकॉज इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो दिस इज अ काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना. तो इसीलिए दिस इज रिमूव्ड एंड देन वी अराइव एट द effective revenue deficit. ठीक है, so this thing also you should know and this gives a clearer fiscal picture. ये थोड़ा और accurate है ना. then है effective revenue deficit. तो हमने देख ही लिया क्या होता है. वो this has been repeated here. ठीक है, fiscal glide देख लेते हैं हम. नेक्स्ट फिस्कल ग्लाइड क्या होता है, इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल इन्वेस्ट adjustments or decreases in the fiscal deficit over time in order to maintain economic stability. ठीक है, तो gradually the fiscal deficit may be reduced over time and that is referred to as in over time. जो ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं फिजिकल डेफिसिट को उसी को इकोनॉमिक, उसी को फिजिकल ग्लाइड बोलते हैं. ठीक है, एंड व्हाई इज द फिजिकल डेफिसिट बीइंग रिड्यूस्ड, सो दैट वो फॉर बेटर इकोनॉमिकल पैरामीटर्स, है ना, क्योंकि a lot of money is going for repaying loans, है ना, तो वो सब ना हो. instead this money is used for capital expenditure and human asset development, इसलिए फिजिकल डेफिसिट इज रिड्यूस्ड. ठीक है, और उसी को फिजिकल ग्लाइड बोलते हैं जो ग्रेजुअली धीरे कम कर रहे हैं. देन वी हैव एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज या ऑफ बजटरी रिसोर्सेज. सो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज या ऑफ बजटरी रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, these are loans taken by the public sector undertakings and government organizations instead of direct government borrowing. So as we know that government के अंडर आते हैं PSU, PSEs, ये सब चीज़ें, है ना. PSU आता है, PSE आता है, PSBs आते हैं, है ना. वी हैड रेड अबाउट दिस अर्लियर, है ना. तो ये अगर इन लोगों ने अगर कोई लोन लिया, दैट विल कम अंडर, दैट विल बी काउंटेड एज एन ऑफ बजट रिसोर्स. ठीक है, ऑफ बजट रिसोर्स लेते हैं, बोलते हैं, या एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स बोलते हैं इसको. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सब्सिडी पेमेंट नहीं दिया गवर्नमेंट ने, देन इट विल फोर्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू टेक अ लोन फ्रॉम फॉर एग्जांपल नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड. तो ये जो लोन लिया है ना, दिस इज नोन एज एन ऑफ बजटरी रिसोर्स और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स. ठीक है, नाउ इश्यूज क्या है ईपीआर से, देखो इफेक्टिवली वो गवर्नमेंट लोन ही हो गया बेसिकली. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है. हाउएवर इट इज़ नॉट बीइंग शोन इन द बैलेंस शीट्स. ठीक है, सो हिडन बर्डन टाइप चीज़ हो जाएगी एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, तो जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने ईबीआर को क्लासिफाई कर दिया एज ऑफ बजट बोरिंग्स and had advised against it as well. ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे भी इसको क्रिटिसाइज करते रहता है. सो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. फिजिकल इम्पैक्ट क्या है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेशन. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एन ऑफ बजट रिसोर्स या एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स. ठीक है, सो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेशंस. ठीक है, एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट और पब्लिक डेट कैलकुलेशन, उसमें इंक्लूड करते हैं.
included in government or public deficit calculation, public debt calculations. Now we'll be looking at debt composition amount wise. So first of all we have internal debt and we also have external debt. Apart from that we also have public debt. Public debt में क्या रहेगा, वो दोनों का कंबाइंड रहता है, इंटरनल डेट प्लस एक्सटर्नल डेट विल बी नोन एज द पब्लिक डेट। ठीक है, इसमें क्या है, इंटरनल डेट में इट इज़ रेफरिंग टू द मार्केटेबल डेट जो है एंड सम नॉन मार्केटेबल डेट एज वेल। ठीक है, तो जो सिक्योरिटीज बिल्स वो सब जो हमने लोन लिया हुआ है इंटरनल एंटिटीज से, दैट कम्स अंडर द इंटरनल डेट। देन एक्सटर्नल डेट क्या रहेगा, दिस इज द डेट विच हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब। ठीक है, तो इंटरनल डेट है मेनली मार्केटेबल डेट एंड सम नॉन मार्केटेबल डेट, whereas external debt is the debt which has been borrowed from international institutions like IMF, World Bank, ADB, etc. Public debt क्या रहेगा, it will be the total of both the internal as well as the external debt. ठीक है, so these three are important from the exam point of view. बाकी इसका क्वांटिटी यू डू नॉट रिक्वायर दिस, है ना, मतलब इसका यू वोंट बी रिक्वायरिंग दिस इन द एग्जामिनेशन। यू शुड जस्ट हैव अ वेरी जनरल आइडिया कि किस कितने आसपास, मतलब कितना अंदाजन कितना होता है। सो फॉर एग्जांपल जो इंटरनल डेट होता है दैट इज़ क्वाइट अ लॉट, वो रहेगा अराउंड 115 लाख करोड़, 100 करोड़, क्या आप इतना सोच लो, 100 लाख करोड़ के आसपास रहता है। ठीक है, एंड जो एक्सटर्नल डेट है दैट इज़ लो, दैट इज़ अराउंड 5 to 6 लाख करोड़। ठीक है, तो मिला के अराउंड 120 लाख करोड़ बन जाता है पब्लिक डेट। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए, इंटरनल डेट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल डेट। नेक्स्ट है डेट कंपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट टाइप वाइज। सो पब्लिक डेट का ये हम लोग देख रहे थे कॉम्पोजिशन। Public debt distribution, according to the economic survey, 70% debt is being taken by the states and 40% is by the, I'm sorry, 30% is by the union. ठीक है, ये डू नॉट लुक एट दिस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बस पता होना चाहिए अराउंड 70% डेट स्टेट्स के पास रहता है और 30% यूनियन के पास। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूनियन डेट है उसका हम लोग कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। इंटरनल डेट इज़ अराउंड 94% और एक्सटर्नल इज 6%, एज वी ऑलरेडी सॉ। कितना, अराउंड 100 लाख करोड़ इज फ्रॉम इंटरनल डेट एंड ओनली 5 लाख करोड़ के आसपास विल बी फ्रॉम एक्सटर्नल डेट। ठीक है, रीपेमेंट करेंसी रुपी रहेगा इंटरनल में, फॉरेन करेंसी एक्सटर्नल डेट के केस में फॉरेन करेंसी में रीपे करते हैं। इंटरेस्ट टाइप जनरली फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहता है, ओनली 5% ऑफ द एंटायर लोन विल बी हैविंग फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ठीक है, टेन्योर कैन, इट कैन बी बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। फिर डेट टू GDP रेशियो देख लेते हैं। सो एक्सटर्नल डेट टू GDP शुड बी लोअर दैन 3% एंड इंडिया का जो डेट टू GDP रेशियो है इट इज़ द लोएस्ट अमंग्स द G20, OECD एंड ब्रिक्स नेशंस। ठीक है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फाइनेंसिंग द डेफिसिट्स एंड इट्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द इकोनॉमी। सो जैसे हमारा जो भी फिजिकल डेफिसिट है उसको हमें ओवरकम करना पड़ता है, वी हैव टू समहाउ फाइनेंस दैट डेफिसिट सो दैट जो जिससे भी लोन लिया है वी आर पेइंग दैट मनी बैक ऑन टाइम। ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज फाइनेंसिंग द डेफिसिट। कैसे कैसे कर सकते हैं, आइदर यू कैन इंक्रीज द टैक्स रेट, द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द टैक्स रेट्स, तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, है ना। They can also print more currency. However, if you print more currency, then it will lead to hyperinflation. Similarly, if you increase the tax rate, then Laffer curve का effect पड़ेगा. We had read about this in a previous video. क्या होता है Laffer curve में, क्या होता है, if you increase the tax rates, तो tax evasion will also increase. ठीक है,
tax evasion increases and therefore the tax revenue will ultimately decline. ठीक है, so this a very steady and very careful approach has to be taken if you want to increase the tax rate. ठीक है, then they can also borrow more. तो अगर borrow और करेंगे तो फिर again वो हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और लोन पे बैक करने पड़ेगा, है ना? अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल आल्सो बी अ क्राउडिंग आउट इफेक्ट, मतलब गवर्नमेंट इज द मेन पर्सन टेकिंग द लोन्स, तो बाकी लोगों के लिए लेसर अमाउंट ऑफ लोन्स विल बी लेफ्ट। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज रिगार्डिंग इक्विवेलेंस ऑल्सो। उसका मतलब क्या है? इट सजेस्ट दैट फिजिकल फाइनेंसिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग through debts rather than taxes has no effect on the total demand or consumption. ठीक है, so this is not very good according to Ricardian equivalence. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिकार्डियन इक्विवेलेंस का मीनिंग। फाइनेंसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग out of debt rather than taxes will have no effect on total demand or consumption. देखो regarding equivalence, I'll just explain this to you via an example. I had seen this example on YouTube itself. इसमें क्या होता है? There are two options with the government. So if the government is facing a case of fiscal deficit, हाँ मैं यहाँ पे अच्छे से I'll just explain it properly. देखो यहाँ पे regarding equivalence को देख लेते हैं। ठीक है, सो अभी गवर्नमेंट है, सपोज कोई भी, उसके पास काफ़ी सारा फिजिकल डेफिसिट है। ठीक है, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू समहाउ फंड दिस फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, सो इट कैन डू टू थिंग्स, इट कैन आइदर इंक्रीज द टैक्सेस और फर्दर बोरो करेगा, इंक्रीज टैक्सेस या फर्दर बोरोइंग। ठीक है, अभी गवर्नमेंट का एम क्या रहेगा कि इन दोनों में से इट विल हैव अ टेंडेंसी टू सिलेक्ट द वन विच इंश्योर्स कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ कीप्स राइजिंग, वो कम ना हो जाए कहीं पे भी, पूरे इकोनॉमी का ग्रोथ डज नॉट रिड्यूस। ठीक है, दिस इज जनरली द मेन एम ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो अगर इफ इट गोज फॉर इंक्रीजिंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू finance the fiscal deficit, then what will happen is जो नॉर्मल लोग हैं, ये नॉर्मल कंज्यूमर्स और हम लोग हैं, we will have less income left, less money left for consumption expenditure, क्योंकि बहुत सारा पैसा तो टैक्सेस में चले गया। ठीक है, तो हमारे पास खुद के पास कम पैसा बचेगा, सो वी विल रिड्यूस आवर कंजम्पशन, है ना? वंस वी रिड्यूस आवर कंजम्पशन द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट विल गो डाउन। ठीक है, ये होगा इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस टू कम्बैट द फिजिकल डेफिसिट। नाउ सेकेंड चीज़ क्या कर सकती है गवर्नमेंट? दे कैन बोरो, है ना? दे कैन फर्दर बोरो। ठीक है, तो बोरो अगर कर रही है गवर्नमेंट तो क्या होगा उस केस में? गवर्नमेंट विल टेक अ लोन फ्रॉम सम बैंक और वट एवर, इंटरनल डेट या एक्सटर्नल डेट ले लिया। हाउएवर जो कंज्यूमर है उसको पता रहेगा कि यार इसने लोन लिया है गवर्नमेंट ने, है ना? आज नहीं तो कल, टुमारो इट इज़ मी ओनली हु विल हैव टू रीपे दिस लोन। व्हाई? बिकॉज अभी तो गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, बट आफ्टर फ्यू डेज
आफ्टर फ्यू डेज या आफ्टर सम टाइम they'll have to increase the taxes, increase tax करना पड़ेगा फिर से in order to repay this loan, to repay the loans. ठीक है, तो ये पर्सन, ये ऑब्जर्वर बैठा है, कंज्यूमर, उसने देखा यार इसने लोन तो ले लिया है अभी, बट बाद में ये मेरे से ही वापस लेगा पैसे, बाद में जाके दे विल इंक्रीज द लोन्स, इंक्रीज द टैक्स रेट, एंड इट विल बी मी हु विल बी इफेक्टेड. ठीक है, सो अगेन व्हाट दिस पर्सन विल डू, ही इज वेरी स्मार्ट, ही और शी, and what will they do is they will not increase their consumption expenditure, not increase consumption expenditure, because they will think कि नहीं बाद में कभी तो बढ़ाएगा, तो मैं अभी बचा के रखता हूँ या रखती हूँ और बाद में I'll have to pay this as tax. ठीक है, सो दिस इज नोन एज रिकार्डियन इक्विवेलेंस, मतलब दोनों केस में जो पर्सन है दे विल नॉट बी कंज्यूमिंग. ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम ही रखेंगे दोनों केसेस में वो लोग. ठीक है, दिस इज व्हाट वी मीन बाय रिकॉर्डिंग इक्विवेलेंस. सो वही है कि रिकॉर्डिंग इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंगली फिजिकल डेफिसिट आपको बढ़ाना ही नहीं चाहिए. यू शुड कीप इट बिलो अ सर्टेन लेवल, बिकॉज वट एवर यू डू टू फाइनेंस द फिजिकल डेफिसिट, it will have a negative impact on the overall economic growth rate, because consumption will invariably it will decrease even if you borrow money or increase the tax. In both the case there will be a similar effect. ठीक है, this is known as Ricardian equivalence. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस मतलब सेम चीज़ हो रही है दोनों केसेस में. ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. नेक्स्ट वही रिकॉर्डिंग इक्विवेलेंस के बारे में दिया है कि हाई डेफिसिट, ये आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू वाया दैट डायग्राम. ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस इफ यू वांट. नेक्स्ट वी स्टडी हाउ the economic survey in 2021 had said that Ricardian equivalence is invalid for India. ठीक है, उन्होंने क्या बोला था इकोनॉमिक सर्वे में, दे सेड दैट उनका अजम्पशन क्या है, रिकॉर्डिंग इक्विवेलेंस का जो प्रोपोजिशन है, जो पूरा मॉडल है, इट हैज सर्टेन अजम्पशंस. ठीक है, द अजम्पशंस आर दैट द सिटीजंस आर रैशनल एंड दे कंसिडर फ्यूचर इनकम, टैक्सेस, फिस्कल डेफिसिट व्हाइल स्पेंडिंग, एंड ऑल द सिटीजन पे टैक्सेस. ठीक है, हाउएवर व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया में ये चीज़ नहीं है. इंडिया में जो प्राइमरीली जो सिटीजन्स हैं, दे जनरली इंडल्ज इन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्पेंडिंग. फॉर एग्जांपल वेडिंग्स पे काफ़ी खर्चा कर देंगे, लग्जरी आइटम्स पे काफ़ी खर्चा कर देंगे. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे टैक्स पेयर्स तो बहुत ही कम है ना, अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द इंडियन सिटीजन्स पे टैक्सेस. ठीक है, प्लस देयर इज अ लॉट ऑफ टैक्स इवेजन एंड ब्लैक मनी एज वेल, एंड दैट इज़ वाई this is not applicable to India according to economic survey. Ricardian equivalence is not applicable to India. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्राउडिंग आउट को देख लेते हैं. सो ये पढ़ लिया हमने. नेक्स्ट यहाँ पे क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट बोरोअर्स का मतलब क्या होता है. सो व्हेन यू बोरो मनी इन ऑर्डर टू फाइनेंस अ फिस्कल डेफिसिट, तब ये प्रॉब्लम आती है क्राउडिंग आउट इफेक्ट का. क्राउडिंग आउट इफेक्ट में क्या रहेगा, when the government heavily borrows from various banks or other institutions, less money will be available for private businesses for borrowing. ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट विच वॉज अप फॉर बोरिंग, विच वॉज अवेलेबल फॉर लोन्स, दैट हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो बाकी जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनके लिए कम पैसा बचेगा. मोर ओवर जो बैंक्स वगैरह हैं, दे विल प्रेफर टू गिव मनी टू द गवर्नमेंट rather than giving it to the private entities, because government has better उनका देर इज मतलब पक्का है ना कि दे विल बी रीपेइंग द लोन. ठीक है, सो दे हैव बेटर क्रेडिट हिस्ट्री, गवर्नमेंट है क्योंकि, है ना, सो दे विल प्रेफर टू गिव लोन्स टू गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द क्राउडिंग आउट इफेक्ट, कि गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा लोन ले रहा है इकोनॉमी में देन द प्राइवेट सेक्टर विल हैव लिमिटेड मनी अवेलेबल फॉर इट. ठीक है, इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट. फिर फाइनेंशियल रिप्रेशन क्या है, द गवर्नमेंट विल बी फोर्सिंग
financial institutions to buy its government securities, thus reducing the optimal returns for households. Because government securities में the interest rate which is offered is lower. ठीक है, now had these financial institutions invested in some private bonds या private equity instead, they would have earned better yields. ठीक है, so again financial repression हो जाएगा if government borrows a lot. ठीक है, देन thirdly क्या होगा, ये समझ गए ना फाइनेंशियल रिप्रेशन में, फाइनेंशियल रिप्रेशन बिकॉज गवर्नमेंट इज जो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाना पड़ रहा है पैसा ज़बरदस्ती. देन इंटरफेरेंस इन इंस्टीट्यूशंस. सो क्या करता है गवर्नमेंट, इट विल फोर्स द गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक नाबार्ड टू बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स ओनली, है ना. और इससे पूरा ऑपरेशनल फ्रीडम इज अफेक्टेड ऑफ दीज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम. सो ओवरऑल वही बोल रहे हैं कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इकॉनमी, फिजिकल डेफिसिट, एंड दैट शुड बी डन अवे विद. फिर ये एविडेंस ऑफ क्राउडिंग आउट दिया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू जस्ट नीड टू नो दैट क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है. ठीक है, देन वी आर लुकिंग एट काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी. सो काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी क्या है, इफ़ यू माइट बी नोइंग, जो इकोनॉमिक साइकिल है उसमें बूम बस्ट पीरियड्स आते रहते हैं. बूम मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बस्ट इज इकोनॉमिक डाउनटर्न. ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे बढ़िया बढ़िया चल रहा है, यहाँ पे बेकार हो गया, पूरा सब रिसेशन आ गया, है ना. और ये अच्छा चल रहा है पूरा इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड का. ठीक है, दिस इज द बूम बस्ट साइकिल. काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी क्या बोलता है कि जब बूम पीरियड है तब तो चलो ठीक है, बट जो बस्ट पीरियड है, दैट इज व्हेन द in a government's policies should be such that it gives a boost to the economy. ठीक है, तो मतलब साइकिल के ऑपोजिट एक साइकिल चलनी चाहिए, दैट इज द साइकिल ऑफ फिस्कल पॉलिसी. ठीक है, तो जैसे इकोनॉमी में ज़्यादा बूम चल रहा है तो यू कैन इंक्रीज टैक्सेस, है ना. वेर एज अगर बस्ट पीरियड चल रहा है, इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ डाउन टर्न, है ना, देन you should give a boost to the economy, and this is known as a counter cyclical policy. ठीक है, ये इसका एंशियंट प्रैक्टिसेस भी है कि किंग्स भी, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में पैलेसेस वगैरह बिल्ड करते थे व्हेन दे वर फेमाइन्स. दिस वाज प्राइमरीली टू गिव एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो ये सभी दिया है यहाँ पे. काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या रहेगा, ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक स्लो डाउन देयर विल बी इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन ऑर्डर टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी. ठीक है, क्राउडिंग इन इफेक्ट होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ जाएंगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, ये सब होगा. सो दिस इज नोन एज काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी. और दूसरी क्या हो जाएगी, प्रो साइक्लिकल. प्रो साइक्लिकल में क्या होगा, वो साइकिल के हिसाब से फिस्कल पॉलिसी चले जा रही है. ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम पीरियड व्हाट विल हैपन, गवर्नमेंट विल इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग. उससे ज़्यादा ही इकोनॉमी में और पैसा बढ़ जाएगा, सो इट विल रिजल्ट इन टू अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन एंड ओवर हीटिंग इन द इकोनॉमी. ठीक है, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट सजेस्टेड नॉर्मली. प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी नहीं फॉलो करते हैं, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी फॉलो करते हैं सब गवर्नमेंट्स. ठीक है, then we are looking at IRGD and debt sustainability. IRGD stands for interest rate growth differential. ठीक है, it is the difference between the interest rate and GDP growth rate. So this is very important. So interest rate which is paid by the government on loans और GDP growth rate का difference को IRGD बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, है ना. सो जैसे अगर एग्जांपल दिया यहाँ पे, इफ़ द लोन इंटरेस्ट रेट इज़ अराउंड 6% एंड द जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ 9%, देन आईआरजीडी कितना हो जाएगा, इट विल बी -3%. ठीक है, तो नेगेटिव आईआरजीडी मीन्स दैट द जीडीपी इज ग्रोइंग फास्टर दैन द लोन इंटरेस्ट रेट. ठीक है, सो दैट मीन्स देयर इज हायर टैक्स कलेक्शन विच इज बीइंग डन. So this is a positive signal. That means that the government will be easily able to repay the loans. ठीक है, and that means there is a less financial stress on the government. ठीक है, तो IRGD as a concept you should understand कि GDP should be higher. GDP का growth rate should ideally be higher than the growth rate of interest rates. ठीक है,
नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट डोमर कंडीशन ऑफ डेट सस्टेनेबिलिटी। तो एफ सी डोमर ने एक पब्लिक डेट थ्योरी दिया था। तो अकॉर्डिंग टू द this his idea, public debt will be sustainable if the GDP growth rate is higher than the public debt's growth rate। ठीक है, अगर जीडीपी का ग्रोथ रेट पब्लिक डेट के ग्रोथ रेट से हायर है तो क्या होगा, जीडीपी जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहा है ना, और पब्लिक डेट कैन easily be covered by the increase in GDP। ठीक है, सो हायर जीडीपी ग्रोथ विल इंश्योर बेटर डेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, एंड इट विल बी easier टू repay the loans। ठीक है, सो ये सिमिलर है, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल के सिमिलर है। दीज टू आर सिमिलर थिंग्स, सिमिलर। ठीक है, इसमें भी बोला है कि जीडीपी ग्रोथ रेट और इंटरेस्ट रेट के बीच में, और यहाँ पे पब्लिक डेट और जीडीपी ग्रोथ रेट के बीच में रिलेशन निकाला है। देन वी हैव ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। सो इसमें क्या है, automatic stabilizers are inbuilt mechanisms in the government budget that automatically respond to economic slowdowns। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, और जो टैक्स लाइबिलिटी था उसको डिक्रीज कर देंगे इन ऑर्डर टू सपोर्ट डिमांड। ठीक है, तो इसके लिए देयर इज़ नो नीड फॉर अ प्रॉपर लॉ, दूसरा लॉ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इट कम्स इन द नॉर्मल गवर्नमेंट फंक्शनिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो वो एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, टैक्स कलेक्शन कम, टैक्स लाइबिलिटी कम कर देंगे, एंड दैट इज़ हाउ they'll help the economy come out of the downturn। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। सो मल्टीप्लायर का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वही ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर and government expenditure multiplier, and then we also have balanced budget multiplier। autonomous expenditure multiplier क्या है, autonomous expenditure increases the essential spending regardless of the income। ठीक है, so autonomous expenditure multiplier measures the impact of change in autonomous spending on GDP or income or output। ऑटोनॉमस स्पेंडिंग क्या लिखा है इसमें, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर इज एनी एसेंशियल एक्सपेंडिचर विच इज़ बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट। तो वही फूड शेल्टर मेडिसिन पे। सो अगर कोई भी चेंज करता है गवर्नमेंट ऑटोनॉमस अपने ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर में, देन व्हाट इफेक्ट डज दैट हैव ऑन द जीडीपी ऑफ द कंट्री, दैट इज नोन एज द ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ठीक है, मतलब वही मेजर करता है एएम। देन सिमिलरली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या है, इट विल बी मेजरिंग हाउ a change in the government spending affects the GDP or income or output। Then we also have balanced budget multiplier। Balanced budget multiplier क्या measure करेगा, it will measure the impact of equal change in taxes and government expenditure on the GDP or income or output। तो अगर there is some change in taxation एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों साथ में हो रहा है, देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन जीडीपी और इनकम और आउटपुट। ठीक है, नाउ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि होता क्या है, बाकी दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन थ्री फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द बजट। सो क्या क्या होते हैं, इट इज़ एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन सो दैट इक्वालिटी इज मेंटेन्ड, है ना, और stabilization, that is to prevent any economic volatility। ठीक है, then miscellaneous terms related to deficit financing। तो देखो एक होता है redemption। redemption का मतलब होता है repayment। so when the loan principal and interest are repaid at regular intervals उसको बोलते हैं, है ना। then we have sinking fund। sinking fund का मतलब होता है, it is a special fund wherein the government regularly deposits money and it is used to repay the debt at maturity।
ठीक है, तो कोई भी किसी गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ है, सो लोन के लिए दे विल क्रिएट अ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड में क्या होगा, दे विल बी रेगुलरली डिपॉजिटिंग मनी, द गवर्नमेंट विल बी regularly depositing money in the sinking fund, and once the maturity rate for the loan has been reached, they'll use this money to pay off the loan। ठीक है, फिर है कन्वर्जन और रीस्ट्रक्चरिंग। ये क्या रहेगा, when an old debt is converted into a new loan with modified interest rates or tenure, then that is known as restructuring of that loan। ये पता है हमने, we have studied about this in the video on banking। फिर एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स क्या रहेगा, व्हेन यू टेक अ न्यू लोन टू रीपे एन ओल्ड लोन। देन रिपुडिएशन, सो या डिफॉल्ट कब होता है, व्हेन द गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू रिकग्नाइज इट्स ऑब्लिगेशन टू रीपे द डेट। सो मतलब वो बोल दे कि नहीं अब मैं नहीं पे कर पाऊंगा, है ना। सो दैट इज नोन एज रिपुडिएशन। फिस्कल कंसोलिडेशन और प्रूडेंस क्या है, इट बेसिकली मीन्स कि फिस्कल डेफिसिट कम रखना। ठीक है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट डेफिसिट्स एंड डेट एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो बहुत सारे मेजर्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो। ठीक है, एंड द गोल इज टू इंश्योर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट वी हैव फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, when the government boost tries to give a boost to the economy, है ना। ये कैसे करेंगे, दे इंक्रीज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, ये सब चीज़ों से होगा। सो गवर्नमेंट पॉलिसी एम्ड एट बूस्टिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको फिस्कल स्टिमुलस बोलते हैं। देन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में देख लेते हैं। सो 2003 का एक्ट है ये, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। उसके देखो, there were certain targets given। First of all, you need to remember the year। FRBM एक्ट कब आया है, 2003 में, है ना। इसको how will you remember this, FRBM 2003 में आया। हाँ, 2004 में there was a very famous tsunami which had come। ठीक है, यू माइट बी नोइंग दिस। पूरा श्रीलंका वगैरह एंड इवन पार्ट्स ऑफ इंडिया हैड फेस्ड अ वेरी ह्यूज सुनामी। तो उससे आप लिंक कर लो कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट केम एन ईयर बिफोर द सुनामी। ठीक है, देन और इसको वैसे भी लिंक कर सकते हैं कि if the fiscal prudence is not maintained properly, then it might result into a tsunami of problems। ठीक है, वैसे करके you can remember this। इसमें देखो क्या क्या है, ओरिजिनल टारगेट्स क्या दिए थे फिस्कल डेफिसिट के, द यूनियन शुड हैव a fiscal deficit not more than 3% of its GDP। Similarly, states का कितना होना चाहिए, अराउंड 3% ऑफ द ग्रॉस स्टेट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, GSDP का 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन रेवेन्यू डेफिसिट कितना होना चाहिए, इट शुड बी एलिमिनेटेड ऑल टुगेदर। ठीक है, सो दीज वर द टारगेट्स, दिस यू नीड टू नो प्रॉपरली कि टारगेट्स कितने थे। फिर दीज टारगेट्स वर नॉट मेट बाय द गवर्नमेंट्स, है ना। तो बार बार दे वर ट्राइंग बट डेडलाइंस हैड टू बी एक्सटेंडेड एंड द गवर्नमेंट्स वर नॉट एबल टू मीट दीज टारगेट्स। देयरफॉर देयर वाज एन अमेंडमेंट विच वाज ब्रॉट इन 2012 वेयरइन जो 0% रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट है दैट वाज रिमूव्ड। ठीक है, उसकी जगह इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वाज टू बी मेड 0%। ठीक है, सो दिस वाज अ न्यू टारगेट विच वाज ब्रॉट इन 2012। ठीक है, सिमिलरली और भी डेडलाइन एक्सटेंशंस कर दिए थे काफ़ी सारे। राइट नाउ 26 का टारगेट कितना है, 4.5% फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। ठीक है, एज पर द 15th फाइनेंस कमीशन। ओरिजिनली FRBM के अकॉर्डिंग इट शुड बी नॉट मोर दैन 3%। नेक्स्ट है FRBM का ट्रिगर मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा, ट्रिगर मैकेनिज्म या एस्केप क्लॉज भी बोलते हैं इसको, सेक्शन 4 में है। सो इन केस देयर इज़ अ वेरी बिग इमरजेंसी,
तब जो FRBM टारगेट्स हैं उनसे डिविएट होना इज़ अलाउड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द FRBM एक्ट. सो व्हाट आर द कंडीशंस वेयर इन दिस इज़ अलाउड? नेशनल सिक्योरिटी अगर थ्रेट में है, इफ़ देयर इज़ अ वॉर, देन द FRBM टारगेट्स कैन बी एक्सीडेड. देन अगर कोई नेशनल कैलमिटी आ गई, देन एग्रीकल्चरल इन आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम है, या फार्म इनकम हैज़ suddenly collapsed due to some reason, even then if there's a sharp fall in the GDP growth, then structural reforms with fiscal impact. अगर कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इवन GST वाज अ वेरी बिग रिफॉर्म, बट आई डाउट इफ इट ट्रिगर्ड द एस्केप क्लॉज, ठीक है, ऐसे कोई बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रहे हैं, इवन देन इट इज़ अलाउड, ठीक है. सो government can exceed the fiscal deficit target by up to 5.5% of the GDP, uh, according to the NK Singh committee. ठीक है, states can also do the same, but they need to amend the FRBM Act. ठीक है, recent applications क्या है वही कि fiscal deficit का deadlines increase कर दिए थे, plus the percentage was also increased. जो fiscal deficit वो होता है limits है ना. देन 2020 में ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वाला जो कंडीशन था उसको यूज़ करा था टू एक्सीड द फिस्कल डेफिसिट लिमिट्स, ठीक है. दिस यू शुड रिमेंबर कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वाला जो कंडीशन है दैट वाज यूज्ड इन 2020. एंड वो 2021-22 में ड्यू टू द कोविड क्राइसिस ऑल्सो the limit was increased to around 6.8% fiscal deficit limit, ठीक है. Now we'll be looking at some miscellaneous concepts related to FRBM. तो fiscal glide तो हमने वैसे ही पढ़ लिया था पहले. I'll just repeat it once again. Fiscal glide means the gradual reduction of the fiscal deficit instead of an immediate cut, ठीक है. So gradual जो फिस्कल डेफिसिट कम कर रहे हैं उसको बोलेंगे फिस्कल ग्लाइड. देन वी हैव फिस्कल प्रोफ्लिगेसी. ये क्या है? रेकलेस और वेस्टफुल पब्लिक स्पेंडिंग होता है ना, उसको इट इज़ नोन एज फिस्कल प्रोफ्लिगेसी. सो प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करना, ठीक है. देन वी हैव फिस्कल स्लिपेज. फिस्कल स्लिपेज क्या है? व्हेन द फिस्कल डेफिसिट एक्सीड्स द टारगेटेड लिमिट, दैट इज़ नोन एज फिस्कल स्लिपेज, ठीक है. देन FRBM एक्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं गवर्नमेंट को. सो अंडर द FRBM एक्ट द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रेजेंट सर्टन डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द बजट. सो इन डॉक्यूमेंट्स का नाम यू शुड बी नोइंग ऑल ऑफ दीज. First of all, there should be a macroeconomic framework statement, then there has to be a medium term fiscal policy statement, then fiscal policy strategy statement, और 4 medium term expenditure framework, ठीक है. ऑल ऑफ दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है वो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक डेटा प्रेजेंट करेंगे उसमें. मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट में इट विल बी आउटलाइनिंग फिस्कल टारगेट्स फॉर द मीडियम टर्म, ठीक है. देन फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में देर विल बी सर्टन मेजर्स विच विल बी टेकन फॉर कंट्रोलिंग द फिस्कल डेफिसिट, वो सब चीज़ें मेंशन रहेंगी. देन मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क में वही एक्सपेंडिचर प्लान्स दिए रहेंगे, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? देखो, मीडियम टर्म के दो हैं. दिस वन इज़ मीडियम टर्म स्टेटमेंट एंड दिस वन इज़ ऑल्सो मीडियम टर्म स्टेटमेंट. ये कौन सा है? मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, ठीक है. और फिर अगर आप देखोगे तो फिस्कल पॉलिसी के भी दो स्टेटमेंट्स हैं. एक ये वाला है medium term fiscal policy and there is fiscal policy strategy statement as well. इन तीनों के अलावा there is macro economic framework statement, ठीक है. So बस there are 4 things which have to be submitted along with the budget. Next we are looking at fiscal federalism, that is helping the states in आत्मनिर्भरता. सो दिस इज़ नथिंग. वो अब बस होता है ना कि टैक्स डेवल्यूशन करते हैं, फाइनेंस कमीशन इज़ द वन डूइंग इट, है ना. एंड देयर आर वेरियस ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट्स. बस उसी की बात हो रही है इसमें फिस्कल फेडरलिज्म में, ठीक है. नाउ एज पर आर्टिकल 293 of the Indian Constitution, the states require permission from the Union government before borrowing any money.
ठीक है। सो अर्लियर देयर वाज अ लिमिट ऑफ नियरली 3% ऑफ GSDP। तो बोरोइंग पे इतना लिमिट लगा था कि इससे ज़्यादा बोरो नहीं करना है स्टेट्स ने, ठीक है। हाउएवर इट वाज इंक्रीज्ड लेटर ऑन, है ना। ये वही टेबल दिया है कि इंक्रीज करते गए बीच बीच में। सो फ्रॉम दिस पोर्शन यू नीड टू रिमेंबर दिस आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 293 इट डील्स विद द provision that states will require permission from the union government before borrowing money, ठीक है। परमिशन से रिलेटेड है। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, देखो 293, ठीक है। जो 9 है ये इन्वर्टेड पी जैसा लग रहा है ना, और जो ई है, ई लुक्स लाइक, ई नहीं 3 है, 3 लुक्स लाइक ई, ठीक है। सो परमिशन का पीई, ठीक है। सो यू कैन लिंक 293 विद परमिशन। अभी वही फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स फॉर स्टेट्स दिए हैं यहाँ पे। पहले 3% था, इट वॉज इंक्रीज टू 5%, देन इट वॉज इंक्रीज टू 4.5%, फिर 4%, फिर 3.5%, ऐसे इट इज़ चेंजिंग। सो नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दिस। देन है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए देयर वॉज एन एनकेसिंग FRBM रिव्यू पैनल विच वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। एनकेसिंग कमेटी के अंडर, है ना। तो इस पैनल ने क्या बोला था, ठीक है। सो दे हैड गिवन सम recommendations, however it is no longer relevant for the examination, so Mrunal sir has not added those in the notes, ठीक है। सो हम लोग भी नहीं पढ़ेंगे। देन यहाँ टाइप्स ऑफ बजट देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 2 टाइप्स ऑफ बजट। मेन जो क्लासिफिकेशन है वो इन दोनों में करते हैं हम लोग, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल बजट, ठीक है। सो रेवेन्यू इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू असेट्स, परमानेंट एसेट्स से रिलेटेड रहेगा कुछ भी। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एसेट्स, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू असेट्स, whereas capital is related to permanent assets, ठीक है। ये यू शुड बी नोइंग द डिफरेंस, कोर डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। नाउ रेवेन्यू बजट देख लेते हैं। रेवेन्यू बजट विल बी अ शॉर्ट टर्म बजट फॉर लेस देन 1 ईयर, उसका इनकम और एक्सपेंडिचर दिया रहेगा। इट विल नॉट बी क्रिएटिंग एनी परमानेंट एसेट्स, ठीक है। तो इसमें वही टैक्स रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन्स, ये सब चीज़ें, सैलरी पेंशन, ये सब रहेगा। देन जो कैपिटल बजट है इट विल बी डीलिंग विद लॉन्ग टर्म इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो वो आपको समझ आ गया होगा, परमानेंट एसेट्स से जो भी रिलेटेड है दैट कम्स इन कैपिटल बजट। नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट जनरल बजट वर्सेस रेलवे बजट। सो यू माइट बी नोइंग कि पहले के टाइम पे एक रेलवे बजट करके देयर यूज टू बी अ सेपरेट डॉक्यूमेंट ऑल टुगेदर, ठीक है। तो एक नॉर्मल हमारा ओवरऑल बजट बनता था और रेलवे बजट अलग से बनता था, ठीक है। सो दिस हैड स्टार्टेड इन 1920-21 व्हेन द Ackworth कमिटी हैड रिकमेंडेड अ सेपरेट रेलवे बजट, ठीक है, Ackworth कमिटी। तो हाउ विल यू रिमेंबर दिस Ackworth, मतलब रेलवे को इसको ऐसे लर्न कर लो, रेलवे वॉज फीलिंग वेरी वर्दी, देयरफॉर दे आस्क्ड फॉर देयर ओन सेपरेट बजट, ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। 1924 में separation convention was passed whereby the railway budget was separated from the general budget, ठीक है। now you need to remember the years as well, ठीक है। तो 1920-21 में रिकमेंड करा था और 24 में जाके देयर वाज अ सेपरेट कन्वेंशन विच वाज ब्रॉट इन, है ना। तो इसको आप अभी वाले ईयर से लिंक कर लो कि 2017 में, मतलब दिस इज़ वेरी क्लोज टू 2020, ठीक है। सो इससे एक सेंचुरी पहले 1920 में दिस बजट वॉज ब्रॉट इन, रेलवे बजट का इंट्रोड्यूस करा था, और तभी 1924 में इट वॉज ऑफिशियली सेपरेटेड, रेलवे बजट एंड जनरल बजट वर ऑफिशियली सेपरेटेड, ठीक है। और इसी के 100 ईयर्स बाद में इट वॉज
डन अवे विद पूरा रेलवे बजट एंड जनरल बजट को इट वाज मर्ज्ड, ठीक है। तो बस इतना ही दिया है। एंड इट वाज द विवेक देबरॉय कमेटी ऑफ नीति आयोग हु हैड रिकमेंडेड दिस मर्जर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लान वर्सेस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बजट। सो प्लान एक्सपेंडिचर बजट और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बजट में क्या फ़र्क है? एज यू माइट बी नोइंग वी हैड अ प्लानिंग कमीशन बिफोर नीति आयोग, है ना। 2014 में प्लानिंग कमीशन वाज डिसबैंडेड एंड वाज रिप्लेस्ड विद नीति आयोग। तो जो पहले जो प्लानिंग कमीशन होता था दे यूज्ड टू कम अप विद 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। एंड उसके अंडर जो भी एक्सपेंडिचर वाज मेंशन्ड, है ना, वो वाला एक्सपेंडिचर यूज्ड टू बी काउंटेड एज प्लान एक्सपेंडिचर बजट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो जनरल इकोनॉमिक सोशल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट है या जो नॉर्मल चीज़ें हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस सब्सिडीज, सैलरीज, पेंशन, ये सब दे यूज टू कम इन कैपिट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बजट, ठीक है। तो दिस वाज अ डिफरेंस विच यूज टू एग्जिस्ट बैक देन। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 5 ईयर प्लान में जो चीज़ मैंशन है वो प्लान एक्सपेंडिचर रहेगा। देन बजटिंग और उसके स्ट्रैटेजीज। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बजटिंग स्ट्रैटेजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ट्रेडिशनल लाइन और लाइन आइटम बजटिंग, ठीक है। देन वी हैव परफॉर्मेंस बजटिंग, फिर ज़ीरो बेस्ड बजटिंग भी होता है और सनसेट बजटिंग होती है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल या लाइन आइटम बजटिंग में क्या है, इट विल सिंपली, देखो इनका जो नाम है ना, ऑल ऑफ देम आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल बजटिंग है उसमें सिंपली जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसको कैलकुलेट कर लेंगे एंड नथिंग एल्स विल बी डन। कोई भी बेनिफिट परफॉर्मेंस वगैरह दे विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। परफॉर्मेंस बजटिंग में क्या होगा, द एक्सपेंडिचर विल बी measured with I'm sorry will be linked with the corresponding outcome and efficiency। कि अब मैंने अगर ये एक्सपेंडिचर करा है कोई भी, आई हैव बिल्ट अ न्यू, फॉर एग्जांपल आई हैव बिल्ट अ न्यू मेट्रो इन सम सिटी, है ना, उसका एक्सपेंडिचर करा है तो उसका मेरे को मेजरेबल आउटकम क्या मिला है, ठीक है, उससे इट विल बी लिंक्ड। देन वी हैव ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें क्या होगा, देखो जो ट्रेडिशनल बजटिंग होता है उसमें द फंड्स आर इंक्रीमेंटली इंक्रीज्ड, ठीक है। तो इस साल इतना फंड दिया है तो नेक्स्ट ईयर देयर विल बी मोर अमाउंट ऑफ फंड विच विल बी एडेड ओवर। वेयर एज ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में इट इज स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एवरी ईयर, ठीक है। सो एवरी डिपार्टमेंट मस्ट जस्टिफाई इट्स बजट नीड्स। तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि पिछले साल जितना दिया था उससे it will be increased or something like that. That does not happen here, ठीक है। देन वी हैव सनसेट बजटिंग। सनसेट मतलब कि कुछ भी ख़त्म करना, सनसेट। सो पॉलिसीज और स्कीम्स आर लॉन्च्ड विद अ स्पेसिफिक गाइडलाइन, सॉरी डेडलाइन, ठीक है। तो ये डेडलाइन ख़त्म होने के बाद द स्कीम विल स्टॉप टू एग्जिस्ट, ठीक है। तो वो उसको सनसेट बजटिंग में काउंट करते हैं, ठीक है। Then we are looking at gender budget. Gender budget, as the name suggests, उसमें government funds and resources will be used in such a manner that it specifically addresses general disparities and promotes gender equality, ठीक है। So it will ensure that both women and men benefit equally from the government schemes and policies, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइबल प्लान, ट्राइबल सब प्लान एंड SC/SB। सो इसको भी देख लेते हैं। देखो since the 1970s the ministries must earmark funds for SC/ST within their overall budget, ठीक है। तो इसको शेड्यूल्ड कास्ट का सब प्लान या ट्राइबल सब प्लान बोलते हैं इस वाले फीचर को, ठीक है। एंड additionally there are certain practices whereby separate documents are provided for children, मतलब कि separate allocation is made for children या separate allocation is made for north east areas, ठीक है। however this is not constitutionally required, ठीक है। तो targeted budgeting में as the name suggests
टारगेटेड ग्रुप्स के लिए स्पेसिफिक बजट प्लान्स बनाए हैं, है ना, उसको बोलेंगे. नाउ द शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान है दैट विल बी मॉनिटर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ठीक है, बाय द ई उत्थान. उत्थान मतलब उठा, एम्पावर करना लोगों को. ठीक है, उससे करेंगे. और जो ट्राइबल सब प्लान है दैट विल बी मॉनिटर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स via this website stcmis.gov.in. ठीक है. Now we'll be looking at output outcome framework for various schemes. So this framework had been started from budget 2017 onwards, wherein the finance minister will upload a document showing the outlay output and outcomes for each ministry and department. ठीक है, and this will be monitored by नीति आयोग. ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेगा, जो भी स्कीम्स हैं, ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, उनका एक तो आउटले, मतलब कितना मनी हैज़ बीन असाइंड टू दैट स्कीम दैट दे विल बी पुटिंग. along with that they will be giving the output, that is the deliverables या goals भी बोल सकते हैं. and then they will be also mentioning the outcomes के what has been achieved. ठीक है, so this is known as the output outcome framework for schemes. ठीक है, so this is an example of the same. You can read it if you want. Next है cash versus accrual budgeting. It is not important maybe, है ना. नेक्स्ट देख लेते हैं लैप्सेबल फंड्स एंड मार्च रश. तो क्या लैप्सेबल फंड के बारे में आपको पता होगा. देखो, लैप्सेबल मतलब इफ यू लुक एट द वर्ड इटसेल्फ, मतलब समथिंग विच लैप्सेस आफ्टर सम टाइम, है ना. तो जो भी जैसे कोई भी फंड किसी भी मिनिस्ट्री को वो दिया है, किसी भी ministry को certain funds are assigned. However, if the ministry is unable to use those funds in the requisite time period, then if the funds lapse, then they will be known as lapsable funds. Whereas if they continue to be, मतलब they go on to the next year also, है ना, they then that will be known as non-lapsable fund. Therefore, अगर कोई balance amount बचा है and it goes on to the next year as well, that will be known as non-lapsable fund. ठीक है, ये बस पता होना चाहिए. देन वी विल बी लुकिंग एट अप्रोप्रिएशन एक्ट. सो ये हमें पता ही है कि इन केस द गवर्नमेंट वांट्स टू स्पेंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देन ये इट रिजॉर्ट्स टू द अप्रोप्रिएशन एक्ट. ठीक है, रूल ऑफ लैप्स क्या है, अनयूटिलाइज्ड फंड्स मस्ट बी रिटर्न्ड. ठीक है, और जो नॉन लैप्सेबल वाले होते हैं उसमें they are not returned, the funds are not returned, they continue to stay here in the main fund itself, और अगले साल न्यू फंड्स विल बी एडेड टू दी रिमेनिंग फंड्स. ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है. मार्च रश क्या होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जनरली रश टू स्पेंड funds before March end to avoid returning them, and this phenomenon is known as the March rush. ठीक है, बिकॉज क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा नहीं तो उनका सारा पैसा, सो माइट एज विल यूज इट. ठीक है, तो दिस इज नोन एज मार्च रश. नाउ ड्यू टू दिस प्रॉब्लम ऐसे होता था कि मार्च में ऐसे बड़ा बड़ा खर्चा कर रहे हैं सब बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू कर्ब दिस प्रैक्टिस, फाइनेंस मिनिस्टर स्टार्टेड सेटिंग सर्टन स्पेंडिंग लिमिट्स फॉर जनवरी टू मार्च. तो जो Q4 है ना, उसके लिए स्पेंडिंग लिमिट्स लगा दिए थे कि इससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते. देयरफॉर दे विल इंश्योर कि जो सारे फंड्स हैं दे आर प्रॉपरली यूज्ड थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, ऐसा नहीं कि बस लास्ट में जाके यूज़ हो रहा है जल्दी जल्दी में. Then we have non-lapsable funds and no rush. So non-lapsable funds I already explained to you, those funds which do not lapse on March 31st. ठीक है, and they can be used in the future as well. So example है निर्भया fund. ठीक है, which is being managed by the Department of Economic Affairs and it is for women safety. ठीक है, next we have types of schemes. So हाँ, ये this is important. So first of all एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है, देन वी ऑल्सो हैव सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स.
एंड बस ये है। और एक जो यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर है उनके लिए तो 100% फंडिंग रहती है फॉर ऑल स्कीम्स। ठीक है, तो सेंट्रल सेक्टर schemes are those schemes wherein the union government will be funding the entire thing, 100% funding by the union। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एक तो यूरिया सब्सिडी, देन पीएलआई सब्सिडी, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वाला सब्सिडी, अलॉन्ग विद दैट एमपी लैड्स का जो फंड्स होते हैं, देन पीएम किसान। ठीक है, ऑल ऑफ दीज कम अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। देन वी हैव सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उसमें देयर इज सम प्रोपोर्शन विच इज बीइंग गिवन बाय द स्टेट एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी गिवन बाय द सेंटर। ठीक है, सो दे द स्टेट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज वेल। तो काफ़ी सारे लिमिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी 60-40 होता है, 60 स्टेट्स 40 यूनियन, अदरवाइज 70-30 भी होता है कभी कभी। ठीक है, ऐसे करके देर आर डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑन दिस। एंड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 90-10 का होता है ना। सो कोर ऑफ centrally sponsored schemes में ही there are a certain sections of schemes which are known as the core of the core schemes. These are extremely important schemes। ठीक है, और इनके लिए the states may contribute money but government is the prime contributor here, है ना। तो इनके examples भी दिए हैं यहाँ पे। core of the core schemes, then there are also core schemes, और then there are थर्ड टाइप इज ऑप्शनल स्कीम्स। ठीक है, तो तीन मेन टाइप्स के हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। फंड डिस्बर्समेंट एंड मॉनिटरिंग को देख लेते हैं। सो फॉर मॉनिटरिंग डिफरेंट फंड्स देर इज़ अ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम प्रेजेंट। इट इज़ अ वेब पोर्टल। ठीक है, एंड इट इज़ यूज फॉर ट्रैकिंग वेरियस फंड्स। किसके अंडर आता है? दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, उनके अंडर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये 2024 बजट एलोकेशंस दिए। दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। वी विल बी लुकिंग एट 2026 का डेटा इन द करंट अफेयर्स वीडियो। नाउ गवर्नमेंट स्कीम्स में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ government financing. So there is input based financing and there is also result based financing। ठीक है, I'll just highlight this। So as the name suggests, input based finances में क्या होगा? The government will be paying for the inputs, for example material, labor, इन सब चीज़ों के लिए, and the contractors will then be building the roads, providing training, etc। ठीक है, whereas in the results based financing गवर्नमेंट विल बी सेटिंग सम परफॉर्मेंस टारगेट्स। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल कि इतना 15 किलोमीटर रोड शुड बी मेड डेली, है ना, या 80% जॉब प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेनीज विद इन सो मैनी मंथ्स। ठीक है, एंड इफ द टारगेट्स आर नॉट मेट द पेमेंट विल बी रिड्यूस्ड और पीनलाइज्ड। ठीक है, सो दिस विल बी बेस्ड अपॉन द रिजल्ट्स एंड दिस वन विल बी इनपुट बेस्ड। ठीक है, सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी मोर एफिशिएंट। ठीक है, so that is all for this video। Thank you। Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful। You can also follow my Telegram channel for any updates। Thank you।